Hello students, welcome to my channel. This is the video for class 9th, chapter 2, is matter around us pure and types of substances. So before we go for the purity of the substances, we must understand what are the physical changes and chemical changes in your surroundings, correct? So if you can see in this diagram, in this picture, physical changes and chemical changes, what are these? So cutting of wood is a kind of physical change, correct? It's just you are cutting the wood. There is none a kind of chemical change about, correct? There is melting of ice, it is also physical change, there is no chemical reaction. But as we can see, rusting of iron, and we have read about rusting of iron, Fe2O3.XH2O, right? And burning of wood, cutting of wood and burning of wood. When we cut the food, there is no chemical reaction at all. But when we burn the food, there is oxidation of carbon. And what gives after oxidation of carbon? CO2. Why it is CO2? When carbon means a wood, symbol for wood is carbon, because wood is made of carbon. It is kind of carbohydrate. It is a cellulose. And cellulose is what? Cellulose is a carbohydrate. CnH2O whole end. It is the molecular formula of every carbohydrate. Not for every, there is some kind of exception, but generally we just give the formula. Any organic compound are those organic compound having carbon and hydrogen and oxygen as well, right? But carbon is necessary for becoming organic. So carbon is burnt means it get oxidized, it becomes CO2, राइट? तो पहले हमने जाना कि वो सब्सटेंस प्योर है. कैसे जानेंगे प्योर है या फिर इम्प्योर है? आपको जो दिखता है सामने सामने वो प्योरिटी है या इम्प्योरिटी है, कैसे जानेंगे कोई चीज़ मिक्सचर है, कंपाउंड है? इसके बारे में डिस्कशन करना है इन दिस चैप्टर में. अब देखो ज़रा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन काइंड ऑफ केमिकल चेंज हुआ. बर्निंग ऑफ वुड, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ केमिकल चेंज. नाउ The rusting of iron, burning of wood, and eggs cooked into an omelette are examples of chemical changes. Hey, I will show you something. see the wood, This is a physical change. there is no reaction. Let me burn this. I आप need लकड़ी को some burn करेंगे. charcoal. Now this is a chemical. अगर कोई भी लकड़ी बर्न हुई तो लकड़ी को हम क्या बोलते हैं भाई? कार्बन से बना हुआ. तो कार्बन का देंगे ना सिंबल C प्लस. बर्न का हो रहा है, यानी कि हमने याद करो, मैंने बताया रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस में, कि कार्बन इज बर्निंग मीन्स C+O2 रिएक्शन होगी. दिस इज द बर्निंग. जब भी आपको ऐसे लिखाई पड़े तो क्या कहोगे? ये बर्निंग हो रही. और बर्निंग ही तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. क्यों क्यों ऑक्सीडेशन? क्योंकि देखो कार्बन को ऑक्सीजन मिली तो क्या बना देगा? वो CO2. तो जितनी भी यहाँ से निकल रही है गैस, वो क्या निकल रही है? वो CO2 निकल रहा है ऐसे करके. तो ये सब CO2 है. तो क्या एक केमिकल चेंज हुआ. जो पहले कार्बन फॉर्म जो किस पे था? कार्बन में था. या यूँ कह लो पहले C6H12O6 रहा हो, या शुगर कह लो. हम शुगर को भी आप बर्न करेंगे तो भी वो क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, करेक्ट? तो जहाँ भी कार्बन होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया और बर्न होगा, तो अल्टीमेटली क्या बनाना है? उसे बनाना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. Change. There are Chemical two change types कहलाएगा. of changes, टाइप्स ऑफ physical and chemical. Physical changes are temporary, and chemical changes are permanent. परमानेंट. Substances can undergo either physical or chemical changes to form new substances. In this lesson, you will learn about elements, mixtures, and compounds. At the end of this lesson, you will be able to define physical and chemical changes, identify the types of change, given an example, define pure substances and mixtures, list the properties of elements, mixtures, and compounds, and categorize substances into elements, mixtures, and compounds. Have you ever observed an ice cube kept outside the refrigerator for some time? देखिए, आइस जैसे ही आउट ऑफ फ्रीज़र आता है, आउट ऑफ फ्रिज निकाला जाता है, तो क्या होता है? अपना टेम्परेचर बैलेंस करेगा.
तो बाहर की टेम्परेचर ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू आइस, बिकॉज आइस तभी बनता है जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा था। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या कह सकते हैं भाई, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273.16 केल्विन भी होता है। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं टेम्परेचर स्केल में, राइट। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो था अभी क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो आइस मेल्ट हो रही है, याद रखेंगे आइस का मेल्ट होना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, आइस को बस हीट मिल गई सराउंडिंग से, क्योंकि हीट का हमेशा प्रोसेस होता है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम इट्स हाई वैल्यू टू लो वैल्यू, मीन्स फ्रॉम इट्स हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट टू लो टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो एटमॉस्फेयर में हीट ज़्यादा होती इन कंपैरिजन टू आइस, तो हमेशा हीट कहाँ से जाएगी, ज़्यादा से कम की तरफ। तो एटमॉस्फेयर से हीट किधर जाएगी, कम की तरफ। वो कम कहाँ है, आइस में। आइस में तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सपोज तो सराउंडिंग में कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट कहाँ पहुँच गई, हीट पहुँच गई आइस पे, तो आइस क्या होगा, मेल्ट होगा। और याद रखेंगे जब भी ये मेल्ट होगा तो अल्टीमेटली टेम्परेचर क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हीट अपने आप को फ्लो कराता है फ्रॉम इट्स हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट। तो आइस का मेल्ट हो जाना इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज ऑफ कोर्स, राइट। ये फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज नहीं कहेंगे इसे। Ice melts and changes to water. Yes, there is a change in the state of the ice cube. Now, let's do a small experiment. For this, we need to take 2 beakers with 20 grams of sugar and label them as A and B. 2 बीकर हैं, A and Let's B। add some water to beaker A and stir it. In beaker B, we will add a little sulfuric acid. हमारे पास 2 बीकर हैं, हमने बीकर ए में बनाया है। जो बीकर ए है इसमें शुगर प्लस वाटर है, शुगर प्लस वाटर। और ये वाला बीकर है जो तुम्हें, ये हमने बनाया शुगर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यानी शुगर प्लस H2SO4, राइट। अब देखो दोनों में एक चेंज दिखाई पड़ेगा। हमको यहाँ पे ये पता करना है कि किस टाइप का चेंज हुआ है, मिक्सचर किस टाइप का दिख रहा है। जो सोल्यूशन प्रॉपरली दिखाई पड़े हो, क्लीन दिखाई पड़ रहे हो, प्रॉपरली पता ही नहीं चले उसमें मिक्सिंग किस चीज़ की हुई, तो आप क्या कहते हो उसको, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ही हो जाएगा कि सोल्यूशन कंप्लीटली मिक्स्ड है। होमोजीनियस सोल्यूशन वो होते हैं, ऐसा सोल्यूशन जिसमें 2 चीज़ें, आपने 2 सब्सटेंस मिलाए हैं और उसमें पता ही ना चले कि कौन सा सब्सटेंस है, मतलब एक दिखाई पड़े। जैसे मिल्क इज ए होमोजीनियस सोल्यूशन, जबकि मिल्क में क्या होता है, मिल्क इज नॉट प्योर, milk is a combination or mixture of fat plus water, it's not pure, correct। scientifically milk is not pure because milk is combination or mixture of fat plus water। scientifically हम उस चीज़ को, हम जब भी प्योरिटी की बात करेंगे तो प्योरिटी वही होती है जहाँ भी प्योर की बात करेंगे, प्योर सब्सटेंस वो होंगे जिसमें केवल एक टाइप के पार्टिकल से कोई चीज़ बना हो, तो उसे हम बोलते हैं प्योर। साइंटिफिकली जनरली बोल सकते हैं प्योर घी, प्योर मिल्क, दैट इज़ नॉट पार्ट, that is not pure. Pure means only one type of particles, correct? Now let's discuss. Now, observe what happens in beaker A. The sugar Beaker A gets में dissolved in water. पानी में पूरी तरह घुल गया। In beaker B, sugar reacts with sulfuric acid and black sugar charcoal is formed. चारकोल बन जाता है शुगर का। From this, we can say that the change that has taken place in beaker A is a physical change, ये फिजिकल चेंज whereas the है। change that has taken place in beaker B is a chemical change. देखें क्यों फिजिकल चेंज क्यों बोला इसे, देखो फिजिकल चेंज इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का ना तो कलर चेंज हुआ ना तो किसी तरह का इंटरेक्शन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो जो पहले बिल्कुल वाइट था शुगर, सल्फ्यूरिक एसिड मिलने के बाद कलर में चेंज हुआ, कैसा हो गया, ये ब्लैक हो गया। तो जहाँ भी कलर का चेंज आ गया, ऑफ कोर्स डेफिनेटली वहाँ पर किसी तरह का केमिकल चेंज हुआ है, यानी केमिकली वो रिएक्ट कर चुका है, इसीलिए वो चारकोल जैसा बन जाता है, राइट, कोयले जैसा बन जाता है, स्मोक जैसा क्रिएट हो रहा है। In beaker A, we can get back the sugar by the evaporation of water. On the other hand, in beaker B, we cannot get back the sugar from the carbon. वेरी राइट। From this observation, आप यहाँ पे ये देखोगे जो फिजिकल चेंज होते हैं उन्हें वापस आप
प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि शुगर सोल्यूशन था, शुगर सोल्यूशन मीन शुगर सिरप, शुगर प्लस वाटर है। आप शुगर प्लस वाटर को गर्म करोगे, शुगर प्लस वाटर था, आपने इसको हीट किया, जैसे हीट करोगे, हीट होने के बाद क्या निकलेगा, ऊपर तो वेपर बन जाएंगे, नीचे बचेगा क्या, शुगर तो बच जाएगी, तो शुगर वापस आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो था, जो पहले तो शुगर था लेकिन प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से मिक्स हुआ, तो क्या बन गया, एकदम ब्लैकिश हो गया। अब इसको आप कुछ भी कर लो, ये वापस अपनी स्टेट में नहीं आने वाला, यानी ये C6H12O6, यानी कि हम ये जो कह लें कि आपको क्या नहीं मिलने वाला, आपको वापस शुगर यानी कि C12H22O11 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या बन गया है, तो केमिकली रिएक्ट हो गया। तो केमिकल रिएक्शन के बाद वापस उसे पाना वो किसी तरह का पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। फिजिकल चेंज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं We can वापस। conclude that there are two types of changes: physical change and chemical change.